اس دفعہ گندم جو ہے وہ بھی اتنی فصل نہیں ہوئی کیونکہ نہری نظام ہمارا اور اوپر سے پانی کی کمی اور پھر یوریا کی کمی اس نے جو کسان کی ایسے کہہ لیں کہ کمر توڑ دی ہے۔ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، وہ گندم کو ایکسپورٹ بند کرے گا تو اس میں ریٹ انہینس ہوں گے، دنیا میں انکریز ہوں گے، کیونکہ ایک بڑا کنٹری ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائے اور ایکسپورٹ کو بڑھائے۔ وہ لوگ خود ہی اس کو رکھتے ہیں گودامز میں اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کو جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے بارڈرز وغیرہ اوپن کرواتے ہیں اور وہاں پہ بیچتے ہیں، پھر وہی گندم ہمیں دوبارہ خریدنی پڑتی ہے۔ آپ نے خود ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ہم نے افغانستان کو پہلے دی اور واپس وہیں سے ہم نے وہ دوبارہ خریدی۔ ہم گندم سٹور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے پتہ چلے گا کہ یار اب پاکستان اس چیز کو بین کر رہا ہے، پاکستان اس چیز کو روک رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی لوگوں نے اوبیسلی انڈیا میں بھی مطلب یا پاکستان میں بھی کنٹریز میں گندم کو سٹور کر لیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ریٹ بلڈ ہونے کا انتظار کریں، جس طرح ریٹ بڑھیں گے تو وہ اوبیسلی گندم کو ہے وہ سیل آؤٹ کریں گے۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، انڈیا نے آل اوور دی کنٹری ویٹ ایکسپورٹ پر بین لگا دیا ہے اور جب سے انڈیا نے یہ بین لگایا ہے ویٹ کی قیمتوں میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گلوبلی ویٹ شارٹیج ہونے والا ہے، تو اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے کہ انڈیا کے اس فیصلے سے، انڈیا کے اس بین سے کیا پاکستان کو کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی گندم کی کاشت ہوتی ہے اور پاکستان گندم ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، تو کیا پاکستان کو اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ کیا پاکستان ان تمام ممالک کو ویٹ ایکسپورٹ کر سکتا ہے جس پر انڈیا نے بین لگایا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے۔ آپ کا نام؟ جنید، عادل، ذیشان، اسد علی، میاں وقار، محمد اسیب ذوالقرنین۔ ذیشان، انڈیا نے آل اوور دی کنٹری ویٹ ایکسپورٹ بین کر دی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو خود گندم کی بہت اچھی کاشت کرتا ہے۔ فرق پڑنے والا اگر پالیسیز کو مرتب کی جائیں تو اوبیسلی پاکستان اس سے اپرچونٹی کو اویل کر کے پاکستان ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایگریکلچر ملک ہے، ہم 70% ہمارا ریونیو بھی اسی سے جنریٹ ہوتا ہے۔ ہماری موسٹلی ہم کراپ سے پیسے کماتے ہیں، ہماری گندم ہوگی، کپاس ہوگی، تو گندم سے ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کچھ پالیسی ڈرا کرنی ہوگی، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بہت ساری جو گندم ہے ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک سے باہر چلی جاتی ہے تھرو افغانستان بارڈر، تھرو ایران۔ اس اسمگلنگ کو روکنا ہوگا اور اس میں ہمیں کچھ لاز بنانے ہوں گے اور اس چیزوں کو روک کر ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی ایک اپنی پالیسی ہے، انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی اپنی پالیسی ہے، تو یہ اگر انہوں نے بین کیا تو وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن جو ہمارا ملکی حالات جس جگہ پہ اب ہماری معیشت کھڑی ہے یا ملکی حالات کھڑے ہیں، تو غربت ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور آٹے کی قیمت بھی تقریباً 2800 تک پہنچی ہوئی ہے، 3200 رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ تھی، لیکن ابھی ہمیں چاہیے کہ ملکی ضروریات کو پورا کریں، پھر اس کے بعد ایکسپورٹ۔ اگر ہمارے کوئی غریب ممالک جو ہمارے راؤنڈ اباؤٹ ہمسایہ ملک، نیبرز ملک، کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ان کو کوئی تھوڑی سی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، نہ کہ ہم کسی باہر کی مطلب یورپین کنٹریز میں یا کسی اور بلاک میں بھیجیں، کیونکہ ہمارے بیسیکلی تو ہمارے خطے میں ابھی غربت بہت زیادہ ہے اور یہ خطہ عوام کی لحاظ سے سب سے بڑا خطہ ہے جس میں عوام کا پریشر ہے، مطلب ہے کہ دنیا کا 4% حصہ ادھر ہے۔ جی بالکل جی، میں اس بارے میں یہ جو گندم کی ایکسپورٹ جو انڈیا نے بین کی ہے اس بارے میں اتنا جانتا ہوں جی کہ پاکستان جیسی کنٹری کو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے بہاولپور والی سائڈ پہ چلے جائیں یا اس سے آگے کہیں بھی آپ دیکھیں تو ہماری جو ہے سب سے زیادہ وہاں پر کاشتکاری کی جاتی ہے گندم کی، اور پاکستان کو تو ایسا نہیں فرق پڑنا چاہیے، اور انڈیا نے جو یہ سٹیپ لیا ہے اس میں انڈیا کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی آنے والے وقت میں نقصان ہوگا، اس سے انڈیا کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک بین کی بات ہے اور جو کنٹریز کو بین کر دیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، تو میرے خیال سے کہ پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے اور ان کنٹریز میں جو گندم کی ہے گندم کو پرووائڈ کرنا چاہیے جن کنٹریز میں بین کر دیا گیا ہے انڈیا اپنی گندم کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی انڈیا کو دیکھتے ہوئے ویٹ ایکسپورٹ بند کر دینی چاہیے؟ بالکل، امداد کے نام پہ ہم اس طرح کے کافی معاملات کرتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل اب اس پہ بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو خود کفیل کرنے کا سوچنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کنٹریز کو جو کہ اینڈ پہ ہمیں پیسے کے نام پہ امداد ہماری کرتے ہیں۔ اگر یہ اس اپرچونٹی کا پاکستان فائدہ اٹھائے
तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान गंदम की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है बाकी कंट्रीज़ को गंदम एक्सपोर्ट करके? देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसके पास लैंड ज़्यादा है, उसके पास एग्रीकल्चर ज़मीन भी ज़्यादा है. हम इंडिया का पूरी दुनिया का तो नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान पेट पाल सकता है, क्योंकि एक मुल्क की बस की बात नहीं है. दुनिया में तकरीबन 7 अरब इंसान है, 7 बिलियन. तो इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया खुद एक 1.5 बिलियन उसकी आबादी है, और उसकी आपको रकबा पता दुनिया के बड़े ममालिक के अंदर है. लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ ममालिक का पेट ज़रूर पाल सकते हैं और अपने लोगों का पेट पाल सकते हैं. गंदम एक्सपोर्ट करने से हमारा किसान बेहतर हो सकता है और इससे हमारी जो ज़राअत बेहतर हो सकती है. मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती होंगी मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे. वही सेम मैं दोबारा ये रिपीट करूँगा चीज़ कि अपनी इन्होंने खाने की घर की चीज़ देखी नहीं है और बाहर एक्सपोर्ट कर दिया. अगर देखा जाए तो फ्रूट की इंडस्ट्री में भी पाकिस्तान बहुत अच्छे फ्रूट जो है वो बाहर भेज देता है और जो कचरा बच जाता है वो पाकिस्तान में भेज दिए जाते हैं. तो अगर ये अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करते तो हमें रशिया से ये ना गंदम लेनी पड़ती. इवन कि मेरे ख्याल से हमने शायद पीछे अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट की है. तो वो इनको पहले ये देखना चाहिए था, पहले हमारे घर की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, उसके बाद ये बाहर जाते हैं. अभी मौजूदा सूरत हाल में, करंट सिचुएशन में, आपको लगता है कि पाकिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट करनी चाहिए या इंडिया की तरह कोई फैसला ले लेना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से क्योंकि हमारी आवाम को पूरी नहीं पड़ रही तो पहले आवाम का देखना चाहिए ना. अगर आपको नहीं लग रहा कि ये चीज़ ज़रूरियात के मुताबिक नहीं पूरी हो रही तो आप उसको बैन करें, ताकि अपनी पहले घर का खाना पूरा हो, उसके बाद आप जो इजाफी बचता है वो बाहर भेज दें. कोई मसला नहीं है इस चीज़ का. अब देखें ना, हमारी इधर को मिलने आटा बहुत महंगा हो गया. क्यों? क्योंकि गंदम नहीं है यहाँ पे. आपको लगता है कि पाकिस्तान में गंदम की इतनी काश्त होती है कि पाकिस्तान को गंदम उन ममालिक को एक्सपोर्ट करनी चाहिए जहां इंडिया ने बैन कर दिया है? जी बिल्कुल जी, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो मुल्क में ना सर्वे की ज़रूरत है कि कुछ टीम्स हायर की जाएँ कि जो देहाती इलाकों में जाएँ, वहाँ पर ये देखें कि यार यहाँ पर पहले लोग गंदम काश्त कर रहे थे, अब यहाँ पर गंदम काश्त नहीं हो रही, अब गंदम की जगह कोई और फसलें काश्त की जाए. उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके अगर कोई भी आपका जो किसान है, कोई ज़िम्मेदार है, वो खुश नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा इनिशिएटिव स्टेप ले कि जिसकी वजह से हम अपने इस निज़ाम को बेहतर बनाएँ और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं किसान, जो भी मतलब इस चीज़ में आ रहा है, कि इसमें हमें प्रॉपर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है पूरा अपना इंटरेस्ट बिल्ड करें किसानों का, कि गंदम की वो काश्तकारी को ज़्यादा फ़रोग़ दें ताकि हम जो है गंदम को एक्सपोर्ट कर सकें. आपको लगता है कि जिन ममालिक में इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट बैन किया है, पाकिस्तान उनकी कमी को पूरा कर सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. पाकिस्तान के जो अपनी खपत है ना, उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने अपने पास स्टॉक जो है ना उसको ब्रेक किया हुआ है. तो इस दफ़ा गंदम जो है वो भी इतनी फसल नहीं हुई क्योंकि नहरी निज़ाम हमारा और ऊपर से पानी की कमी और फिर यूरिया की कमी, इसने जो किसान की ऐसे कहने की कमर तोड़ दी है. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, हर जगह पे कि खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है. सारा कुछ पहले खाद हमें, मैं खुद एक ज़िम्मेदार घराने से हूँ, लेकिन मैंने AC की सिफारिश से खुद खाद की 25 बोरियाँ उठाई थी. ठीक है ना. तो अब वो जो हमें पहले हमारे 1 एकड़ जो था वो 60 मन निकलता, अभी मेरी खुद की वो 32 मन एकड़ फी एकड़ उसने पैदावार दी है. तो वो कमी आई है. लेकिन अभी जो नहरी हमारे यहाँ पानी का सिस्टम चल रहा है कि जहाँ पे हमारा पानी की ज़रूरत है, जहाँ पे ये ज़्यादातर बावलपुर हो गया, आगे सिंध का इलाका हो गया, जहाँ पे पानी की इस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कि नेक्स्ट जो है गंदम को काश्त करने के लिए या कॉटन को काश्त करने के लिए या शुगर केन के लिए कुछ ज़रूरत पानी की है, वो भी बहुत ज़्यादा शदीद कमी है. तो इंडिया के अंदर उसकी अवामी दबाव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास ज़राई रकबा बहुत ज़्यादा है, जिसके लिहाज से हमारे यहाँ नहरी निज़ाम थोड़ा है लेकिन ज़राई रकबा पड़ा है. पानी ना होने की वजह से वो अभी ज़ेर काश्त नहीं हो रहा. क्योंकि मेरा अपना 25 एकड़ रकबा है जो उस पर पानी ही नहीं है. 3 घंटे पानी है, 3 घंटे में हम क्या कर सकते हैं उधर? हमें तो वो 3.5 एकड़ या 4 एकड़ उसको ही हम वहाँ पे काश्त कर सकते हैं ज़मीन को, बाकी खाली पड़ी है बस. तो इन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने आप को पहले पॉलिसियाँ बनानी चाहिए कि क्या हम गंदम को है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी पैदावार होगी तो फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और दुनिया को भी उससे मुस्तफ़ीद करेंगे और अपने आप को भी मुस्तफ़ीद करेंगे ताकि हमारी मैशत मजबूत हो जाएगी उससे. ये भी सुनने में आ रहा है कि जब से इंडिया ने ओवरऑल द कंट्री वीट एक्सपोर्ट बैन किया है तब से गंदम के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और सुनने में आ रहा है कि अनकरीब गंदम की शॉर्टेज भी होने वाली है.
ऑब्वियसली जब इंडिया एक बड़ा मुल्क है वो गंदम को एक्सपोर्ट बंद करेगा तो उसके रेट इन्हेंस होंगे, दुनिया में इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि एक बड़ा कंट्री है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते थे। तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाए। तो लेकिन इसके लिए हमें वादा पॉलिसी कि हम सबसे पहले जो अपनी ज़रूरियात हैं उनको पूरा रखें, क्योंकि हमें इस चीज़ का वेलम है हमारी बहुत सारी जो गंदम है स्टोरेज के अंदर पड़ी ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ गंदम की प्रोडक्शन के हवाले से, इसके अलावा एक्सपोर्ट के हवाले से हमें सबसे बड़ा इशू है ना वो मैनेजरियल इशू है। हमें आखिरी वक्त तक ये नहीं पता होता हमने एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है। होता है या हम सम टाइम हमने देखा हम गंदम एक्सपोर्ट कर लेना बाद में इंपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमें जो फैक्ट एंड फिगर वो पता होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर गंदम महंगी हो रही तो उसका हमें फ़ायदा है। तो बाकी चीज़ें हमने सिर्फ क्रॉप्स और ये वीट और ये कॉटन वगैरह तो बाहर भेजते हैं, बाकी हर चीज़ तो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इससे हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो पाकिस्तान को फ़ायदा इसका हो सकता है। नहीं, वीट शॉर्टेज नहीं है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उस पर चावल का भी इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो वीट जो है ना, ये आप फास्ट फूड में आप कह लेंगे उसमें भी वीट से वो सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उससे बड़ा एक जो मार्केट में रशिया बैठा हुआ है वीट के लिए, जो कंट्रीज़ के साथ मुआहदे करेगा और उनको वीट देगा। लेकिन इंडिया के बंद करने से कोई ऐसा, मेरा तो ख्याल है, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं है ये वर्ल्ड पे। जी, गंदम अगर बैन भी होगी है तो इससे इतना जो है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो सकता रेट्स पे जो अफेक्ट इस वजह से होता है जो हम लोग गंदम को स्टोर करते हैं, जो हम गंदम स्टोर करते हैं इसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुझे पता चलेगा कि यार अब पाकिस्तान इस चीज़ को बैन कर रहा है, पाकिस्तान इस चीज़ को रोक रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने ऑब्वियसली इंडिया में भी मतलब या पाकिस्तान में भी कंट्रीज़ में गंदम को स्टोर कर लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रेट बिल्ड होने का इंतजार करें। जिस तरह रेट बढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली गंदम को है वो सेल आउट करेंगे। तो हमें ये मतलब इस चीज़ पे चाहिए कि अगर इंडिया ने कर दी है तो हमारे पाकिस्तान जैसी कंट्री को तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो एक नेबरहुड है, एक हमसाए ममालिक हैं, बिल्कुल सेम वही पानी यहाँ पर भी है, वही पानी यहाँ पर भी है, कोई फ़र्क नहीं है। शॉर्टेज की बात करें तो वो तो पाकिस्तान में तो मुसलसल 2-3 साल से हो रहा है। उसकी भी सबसे वजह यह है कि ये जो माफिया हमारा है ना, वो हमारी गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो लोग खुद ही उसको रखते हैं गोदाम्स में, और उसके बाद वो खुद ही उसको जो है ना अपने फ़ायदे के लिए बार्डर्स वगैरह ओपन करवाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। फिर वही गंदम हमें दोबारा ख़रीदनी पड़ती है। आपने खुद अभी पिछले दिनों देखा होगा कि हमने अफ़गानिस्तान को पहले दी और वापस वहीं से हमने वो दोबारा ख़रीदी। यही वजह कि हमें सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके अलावा ही कोई हो सकता है कि कोई बेहतर हाल निकले। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।